के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक का बड़ा बयान सामने आया। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है, शांति और धैर्य की जीत हुई है। जेन जी और सीजेपी को बधाई। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को भी बधाई दी है और इसे लोकतंत्र की जीत कहा है, शांति और धैर्य की जीत हुई है। 26 दिन तक उन्होंने भी भूख हड़ताल की। सोनम वांगचुक जो एक बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़ा किरदार रहे हैं इस पूरे आंदोलन का, उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर यह बड़ा बयान दिया और कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, छात्रों के धैर्य की जीत है, शांति की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और जिन युवा छात्रों ने यह आंदोलन किया है उन्हें बधाई भी दी है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से लगातार जश्न मनाया जा रहा है। अभिजीत दीप के ये कह रहे हैं कि हमने सुना था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि अभी मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी 2 मांगे बाकी हैं। एक तरफ जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उन पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. लेकिन अब ये शुरुआत है। छात्रों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। छात्रों के धैर्य को उन्होंने सैल्यूट किया है
और कहा कि लगातार वो अपनी मांगों पर डटे रहे। उन्होंने न विपक्ष की बात सुनी, न किसी राजनीति में उलझे, बल्कि अपने मांगों पर उन्होंने फोकस रखा। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी सराहना करती हुई इन युवा प्रदर्शनकारियों की दिखाई दी है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों में जश्न है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जीत है। उन युवा छात्रों की जीत है जो लगातार गर्मी में, धूप में, बारिश में यहां पर डटे रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बारे में क्या कहेंगे? अभी आपका जो लगता है कहीं एक बहुत बड़ी जंग जीत चुका है, आपको कैसा फील हो रहा है? अभी गर्व फील हो रहा है। गर्व से बोलती है कि अभिजीत ने अभी अच्छा काम करा है। बीच में डर लग रहा था उसको मारने की वजह से, मुझे बहुत डर लग रहा था क्या होता है क्या नहीं। उनको जो है जब वो कर रहे थे तो शहीद फेंकी गई, आतंकवादी कहा गया, थप्पड़ मारे उसके, तो जब बहुत बुरा लगा रहा था। बहुत नींद नहीं आ रही थी हमको, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं, खाना भी नहीं थे। दोनों को भी ऐसा खाना, नींद दोनों भी गायब हो गए थे हमारे। 7 जून से ही हमारे घर में ऐसे दिल ही नहीं लगता था। टाइफाइड ही हुआ है ना कल उसको। क्या बोलेंगे आप अभिजीत के लिए? क्या बोलेंगे? अभिजीत के लिए बहुत बड़ा काम करा उसने। उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो कि इतना बड़ा भी नहीं है। इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करते हैं, वो तो बहुत गर्व हो रहा है उससे। और सरकार से कुछ कहना चाहूँगी? अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया सरकार ने जो बच्चे की बात माने, वो बहुत अच्छा हो गया। अभिजीत से कोई बात हुई है अभी तक? नहीं ना, अभी वो फोन ही लगा रहे थे, लग रहे नहीं। फिर टीवी लगाया, आज टीवी लगाया हमने, अभी टीवी में उसका ही देख रहे थे। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा। नहीं, माँ बोल के बहुत खुशी हो रही है। सुना है, टीवी में देखा है, तो आपका क्या रिएक्शन था उससे? नहीं, बहुत अभी का इतना रिएक्शन बोले तो बहुत ही कैसा तो भी हो रहा है। मेरे बच्चे ने आज इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। सब जन मेहमान है, सब टेंशन में थे ना। एक लड़का बोले, एक लड़का इतना बड़ा काम कर दिया इसने। कोई अच्छा ही बोल रहे थे, कोई ऐसा ये भी बोल रहे थे। क्या दिल कह रहा है अभिजीत जब सामने आएंगे तो? बहुत महसूस है। आज तो नहीं आएंगे, वो आज ट्रीटमेंट चालू है उसकी। अभी क्या मालूम, नहीं आता तो कल जाते हम उसको लेने क्यों जाते हैं। अभी ऐसे देखते क्या बोलता है तो उसको फोन लगा के। खूप आनंद झाला। त्याच्यात सापड खावी लागली, शाई फेकण्यात आली, नाही तिथे त्याला झोपावं लागलं मच्छरामध्ये, याच्यामध्ये। आज त्याचा एवढा मोठा विजय झाला, खूप मोठे विजय झाला। तुमच्या डोळ्यात अश्रू आले? हो, आनंद अश्रू आहेत त्याचे। माझ्या लेकराचा आज विजय झाला, त्याला टायफॉइड झाला, सगळ्या याच्यातनं आज त्यांनी हे केलं, विजय मिळवून आणला। रात्रभर झोपा नव्हत्या आम्हाला, 3-3 पर्यंत पहाटच्या झोपा येत नव्हत्या। लेकराचं काय होतंय काय नाही, एवढं आम्ही परेशान होतो। आज खूप छान वाटायला लागले। लेकाच्या कष्टाचं चीज झालं, चीज झालं, त्याच्या कष्टाचं चीज झालं।
पेरेंट्स भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष किया है उन्होंने और कई दिन से उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि कई बार अभिजीत पर हमला हुआ, थप्पड़ मारा गया, स्याही फेंकी गई और रिएक्शन आपने देखा। इधर सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की वार्ता को लेकर जानकारी मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बड़ी बैठक के लिए सीजेपी के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं। यानी सीजेपी के साथ अब सरकार की ये बड़ी बैठक इस वक्त होने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक होगी। जो डेलीगेशन है कॉकरोच जनता पार्टी का वो पहुंच गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये बैठक होने वाली है। सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी क्योंकि अभी 2 मांगों का जिक्र अभिजीत दिपके की ओर से किया जा रहा था। जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उन सभी के खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने पुलिस के रूप में, पुलिस की वर्दी में या जो सादी वर्दी में लोग वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने लाठीचार्ज छात्रों पर किया, उनके खिलाफ एक्शन हो। ये मांग कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से उठाई जा रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर जश्न है, लोकतंत्र की जीत, छात्रों की जीत इसको बताया जा रहा है। पंकज वानखेड़े संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यानी जो प्रमुख मांग थी छात्रों की, अब ये बैठक होने वाली है। 2 और मांगों का जिक्र यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। क्या हलचल इस मीटिंग को लेकर? मान लिए थे लेकिन उसको ऑन पेपर फाइनलाइज नहीं किया गया था। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था एक सबसे पहला प्रमुख जो मांग उनकी थी कि इस्तीफा हो और उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा और तीसरा जो मांग है उसको लेकर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि सरकार लिखित तौर पर दे, उसके बाद हम इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो बैठक शुरू होगी उस बैठक में इस मसले को लेकर मसौदा तैयार किया जाएगा और उसको लेकर ऑफिशियली जो है वो सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के जो डेलीगेशन उनको लिख कर देगी कि हमने इस्तीफे की मांग मान ली गई है और जो 1-1 करोड़ मुआवजा देने की बात थी उसको भी हम मान ले रहे हैं और वो हम जो है इसको वापस ले लेंगे। इन तमाम मसलों को लेकर जो है लिखित तौर पर सरकार देगी, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त करने की बात जो है कॉकरोच जनता पार्टी कहती नजर आ रही है। वंदना। बिल्कुल पंकज, क्या ये प्रदर्शन अब खत्म होगा? क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और सबसे बड़ी मांग यही थी, इसी को लेकर देश के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन देखा जा रहा था। सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि कब तक ये आंदोलन खत्म होगा, कब इस्तीफा स्वीकार होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम जब बात कर रहे थे हमने कहा था कि ये आंदोलन अब ये जैनजियों का आंदोलन है और ये किसी लीडर के अंडर ये आंदोलन नहीं है। ऐसे में अब इनके तमाम लोगों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग तकलीफें हैं, अलग अलग मुद्दों के साथ ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इस्तीफा एक मेन प्रिंसिपल, एक मेन जो कहा जाए कि एक मांग थी उनकी, वो मान ली गई है। लेकिन बाकी मुद्दों को लेकर मैंने जब छात्रों से भी बात की, जब इस्तीफा आया उसके बाद, तो इन तमाम लोगों का कहना है कि एजुकेशन रिफॉर्म जब होगा तब हम आंदोलन समाप्त करेंगे। तो अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आंदोलन समाप्त होगा पूरी तरह से या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ी जीत के तौर पे तमाम छात्र और अपोजिशन देख रहा है। इसका जश्न जंतर मंतर में मनाया जा रहा है। गाने के साथ तमाम लीडर्स, मनीष सिसोदिया भी पहुंचे, थोड़ी देर पहले उदय भान पहुंचे, जो यूथ कांग्रेस के लीडर है, अध्यक्ष है, वो पहुंचे। तो तमाम लीडर पहुंच रहे, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि ऑफिशियली अनाउंस कब होगा कि ये जो आंदोलन है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल पंकज, एक तरफ देखिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि बहुत देर कर दी आप लोगों ने, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बताएं कि अंदर खाने क्या चर्चा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे, कौन कौन बड़े किरदार हैं? क्योंकि आज सुबह सुबह मोहन भागवत का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल करती है, उनसे बातचीत होनी चाहिए, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से कल मातृ शक्ति को लेकर कार्यक्रम था दिल्ली में ही, और वो महज जंतर मंतर से 400 मीटर दूर अम्बेडकर सेंटर में था। और वहाँ पे तमाम संघ के पदाधिकारी थे, मुरली मनोहर जोशी थे और मोहन भागवत वहाँ मौजूद। तो उसी दौरान मोहन भागवत ने मैसेज देने की कोशिश की और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं, अगर इनसाइड स्टोरी की बात की जाए, कल देर रात जो है मोहन भागवत की संगठन मंत्री BL संतोष से मुलाकात हुई है और इसको लेकर चर्चा की गई कि इस तरह से दबाव ना बनाया जाए, छात्रों को परेशान ना किया जाए और जो उनकी मांगे हैं शांतिपूर्वक मान लिया जाए। तो उसके बाद जो है ये बदलाव किया गया है और ये भी माना जा रहा है कि इंतजार था राष्ट्रपति का भारत आने का, जो विदेश दौरे पे गई थी और आज वापस आई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद रीशफल भी कभी भी सरकार कर सकती है। यानी कल
ठीक है रविवार या पंकज, परसों लौटेंगे आपके पास, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव की ओर से बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल गांधी को भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। वो जिस तरीके से सरकार को घेर रहे थे, पीएम आवास का घेराव किया, संसद में उन्होंने हंगामा किया, सड़क पर भी छात्रों की आवाज बने, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को भी बड़ा श्रेय दे रहे हैं। अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है। पहला, जो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चालू हुआ, सोनम वांगचुक ने लीड किया, वो एक पहला जो है सरकार के लिए दबाव का कारण बना। दूसरा, राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं, वहां धरने पे बैठ जाते हैं, ये दूसरा दबाव सरकार पे बना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, देशव्यापी जो है एक दबाव जो है, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी सड़कों पे आना शुरू हो गए। तो सरकार को साफ तौर पर समझ में आ गया कि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो ऐसे में ये जो आंदोलनकारी ये उग्र है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जेनजी है, जो युवा वर्ग है, जो अभी वोटर भी नहीं बना है पूरी तरह से, मतलब महज 17-18 साल का युवा है, तो वो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि घर से लड़के निकले हैं तमाम लोग। तो ऐसे में सरकार पे एक दबाव था कि अगर इन पर लाठीचार्ज भी होती है दोबारा तो एक बड़ा जन आंदोलन पूरे देश भर में दोबारा बन सकता है। तो ऐसे में एक दबाव था, उस दबाव का असर साफ तौर पर नजर आया सरकार को बैकफुट। क्योंकि मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं वंदना, 2 दिन पहले सरकार के अंदर ये निर्णय लिया गया कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, रिशफल के दौरान इनको बदल दिया जाएगा, मंत्रालय दूसरा दे दिया जाएगा। लेकिन दबाव इतना बना कि राहुल गांधी ने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है सरकार ऐसा सोच रही है लेकिन हम इस पे एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। तो ये एक दबाव था, दबाव के कारण इतना बड़ा फैसला लिया गया। अब ये देखना होगा सरकार आगे रणनीति क्या करेगी। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार हो सकता है कल या परसों रिशफल का अनाउंसमेंट कर सकती है, जो कई मंत्री एड ऑन करने हैं उनको एड ऑन कर सकती है, किनको हटाना है उनको हटा सकती है। ये तमाम बड़ा बदलाव जो है वो आने वाले 2-4 दिनों में नजर आ सकता है। तो ये जीत जो है विपक्ष और तमाम छात्रों के साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसमें अखिलेश यादव का बड़ा भागीदारी है क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़ा दबाव बनाया सरकार पर, चाहे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, राहुल गांधी ने, विपक्ष के तमाम सांसदों ने। तो एक दबाव है जो साफ तौर पर नजर आया है। और ये जो आंदोलन पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे हो रहा था उसका एक दबाव था। कई बार ऐसा भी हुआ, तस्वीरें आई है वंदना, जहां पे बीजेपी के नेताओं को भी टारगेट करने की कोशिश तमाम छात्रों ने किया है। तो ये दबाव था जिसका असर साफ तौर पर नजर आया है। बिल्कुल पंकज, 36 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को। मॉनसून सत्र से पहले से ही चर्चा हो रही थी कि रिशफल होने वाला है। उससे पहले इन मंत्रियों के सचिवों के साथ भी पीएम मोदी की बैठक हुई थी, तब से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज इतने दिन के बाद जब ये फैसला हुआ है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर पहले हो गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल, देखिए अगर आप ये भी देखिए कि पिछले 4 दिनों में जो सरकार ने फैसले लिए हैं, पहला फैसला सचिवों को बदला गया, सचिवों का रिशफल किया गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आके इस बात को इंस्टाग्राम में आया और उन्होंने कहा कि हम अगले कैबिनेट में, यानी कल जो कैबिनेट है उसमें बड़ा फैसला लेने वाले हैं। उसमें एक बड़ा शिक्षा का रिफॉर्म के लेकर बात कही गई कि जो अगर पेपर लीक करेगा तो उस पर 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। इसको लेकर एक बिल तैयार किया जा रहा, मसौदा तैयार किया जा रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण, एनटीए पे कार्रवाई हुई। एनटीए पे इस तरह की कार्रवाई हुई, करीबन 47 अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त निकाल दिया गया। और उसके बाद 5वां सबसे महत्वपूर्ण जो इस्तीफा हुआ है। तो ये पिछले 4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर अगर यही चीज सरकार पहले कर लेती है और इस पे चर्चा कर लेती है और इन तमाम जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, जो मौजूदा एनटीए में बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई पहले हो जाती, शायद इतना बड़ा प्रचंड जो जनसैलाब है, जो मोर्चा है, वो सड़कों पर नजर नहीं आता। ये बात सरकार को भी लगता है कि हाँ इसमें देरी हुई है, लेकिन हाँ ये जनता भी मानती है, छात्र भी मान रहे हैं कि देरी हुई है लेकिन दुरुस्त हुआ है कि सरकार ने ये बात माना है, क्योंकि उनकी तरफ से इतनी बड़ी गलती हुई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जरूरी बता रहे थे, सरकार की इसे मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरी कह लीजिए, लेकिन 47 अफसर जब
एनटीए के कल बर्खास्त हुए, उसके बाद बावजूद जब ये प्रेशर कम नहीं हुआ, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, ये प्रदर्शन और बढ़ता चला गया, तो क्या ये बड़ी वजह है कि सरकार अब इस मोर्चे पर आई है, इस पॉइंट पर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो दबाव तो विपक्ष का और छात्रों का था ही। ठीक है, पंकज लौटेंगे आपके पास। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। बिना माइक के बोल दीजिए, बिना माइक के बोल दीजिए। माइक आवाज से इको आ रहा है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या बीएचयू रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर, बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या? आप जानते नहीं सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे। तो अखिलेश यादव की ओर से भी छात्रों को कहा गया है कि आप लोगों ने संघर्ष किया है, आपकी ये बड़ी जीत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सदन में हमने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसी के साथ ही आप रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
है।